الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضرات گرامی قدر، انسانوں کو کیوں بنایا گیا؟ اس سوال کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں نہایت احسن انداز سے واضح فرما دیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اللہ پھر آپ نے کائنات کو کیوں بنایا؟ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے کائنات کو اس لیے بنایا تھا، جنات اور انس کو اس لیے بنایا تاکہ میری پوجا کیا کریں، میری عبادت کیا کریں. اللہ کی عبادت کے رنگ فرق فرق ہیں. نماز بھی ایک رنگ ہے، روزہ بھی ایک رنگ ہے، زکوٰۃ بھی ایک رنگ ہے، حج بھی ایک رنگ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جانور کے گلے کے پر چھری چلاتے ہوئے لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک رنگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو ہمارے اوپر کیوں لازم کیا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے اوپر قربانی کو لازم کر دیا تاکہ انسانوں کے چوپایوں کے اوپر، ان کے پالے جانے والے جانوروں کے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو لیا جائے اور اس بات کو ثابت کیا جائے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک ہماری نمازیں، بے شک ہماری قربانیاں، بے شک ہمارا جینا، بے شک ہمارا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر، اس کے اسماء و صفات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا اور ہم سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنے والے ہیں. قربانی کی تاریخ تو بڑی لمبی ہے، لیکن اس قربانی کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت رنگ اگر کسی نے بھرا تو وہ سیدنا ابراہیم کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ابراہیم کے دل کے تاروں کے اندر نہ غیر اللہ کا دباؤ ہے، نہ غیر اللہ کی محبت ہے. دربار نمرود میں صدائے توحید کو بلند فرما دیا، بت گدے میں جا کر کلہاڑے کو چلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر نمرود کی جلتی ہوئی چتا میں ڈوبنا گوارا کر لیا. حضرات قدر اور جب محبتوں کی باری آئی، سیدنا حاجرہ کو، سیدہ حاجرہ کو سیدنا اسماعیل کے ہمراہ وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چاہے زمزم کو جاری فرما دیا، اللہ نے ان کے لیے رزق کو جاری فرما دیا، ان کے دن کی طرف انسانوں کے دلوں کو پھیر دیا. حضرت ابراہیم مکہ میں آتے رہے، جاتے رہے. یاد الگ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو ایک عجیب سپنا دکھلایا. فلما بلغ معہ السعی، آپ کیا ہے؟ تنو وزنی ایک پہاڑ ہے. آپ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی چٹان ہے. آپ نے دیکھا اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں. اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے اس بات کو رکھا، کہا بیٹے انی ارا فی المنام، کہ اے بیٹے میں تیرے گلے کے اوپر چھری کو خواب میں چلا رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی،
सैयदना इस्माइल ने कहा बाबा पूछने की जरूरत क्या है, बाबा मेरे गले के पछुरी को चला दीजिए, मैं भी तो आप ही का बेटा हूं, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। और हजरात ग्रामी कदर, हमारा इस्लाम अपने घरों में लेटे हुए हमारा इस्लाम अपने बिस्तरों पर लेटे हुए, लेकिन इब्राहिम के इस्लाम का आलिम क्या है, हाथ में छुरी को थामा हुआ, और इस्माइल के इस्लाम का आलिम क्या है, अपने बाप के सामने अपने गुलू अथर को किया हुआ। हजरात ग्रामी कदर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को बेटे की गर्दन पर रखा, पेशानी या कनपटी का बल पिछाड़ा, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तूने अपने हाथ को पूरा कर दिखाया, वफदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, अल्लाह ने जन्नत के मेंढों को दबा करवा दिया, सैयदना इब्राहिम की कुर्बानी को भी कबूल फरमा लिया। हज़रात गिरामी कदर, आज हम भी जानवरों को लेके आते हैं, ऊंटों को लेके आते हैं, गायों को लेके आते हैं, बकरों को लेके आते हैं, छतरों को लेके आते हैं, लेकिन हज़रात गिरामी कदर सोचने की बात यह है, जब छुरी जानवर के गले के ऊपर चलती है, क्या हमारे दिल के अंदर भी तकवा की वो कैफियत मौजूद होती है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सैयदना इस्माइल के गले के ऊपर छुरी चलाने के लिए आमादा और तैयार कर दिया था। हज़रात गिरामी कदर, आज आलिम ये है, छुरी जानवर के गले पे तो चलती है, लेकिन झूठे मोतकदात पे नहीं चलती। छुरी जानवर के गले पे तो चलती है, लेकिन वक़्त के सुल्तान जाबिर के सामने नहीं चलती। छुरी जानवर के गले पर चलती है, लेकिन झूठे रसूम और रवाज के ऊपर नहीं चलती। अल्लाह ने क्या कहा, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तुम्हारे काटे जाने वाले गोश्त की जरूरत नहीं, तुम्हारे बहाए जाने वाले लहू की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे दिल के तकवा की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, ईद कुर्बान का दिन खुशियों को बांटने का दिन है। ईद कुर्बान सैयदना इब्राहिम की रिवायात को पलटाने का दिन है। ईद कुर्बान अल्लाह तबारक व तआला के लिए हर चीज को वक्फ कर देने का दिन है। ईद कुर्बान अपनी हर चीज को रिदा इलाही के लिए तज कर देने का दिन है, और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के झंडे को सरबुलंद करने का दिन है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मीनारे पाकिस्तान की वो ईदगाह जो सैयद मोहम्मद दाऊद नबी की यादगार है और हजरत अल्लामा शहीद की यादगार है, आज उस ईदगाह को सबोताज करने के लिए यहाँ पे सर्कस को लगाया गया। हज़रात गिरामी कदर, आज हम इस बात का पैगाम दे देना चाहते हैं, आइंदा के बाद यहाँ पे किसी सर्कस को, किसी खिलवाड़ को दोबारा नहीं किया जाएगा। अल्लाह के फज़ल व करम से उन्हीं मैदानों के अंदर ईद का इज्तिमा करवाया जाएगा जिन मैदानों के अंदर पहले से होता रहा। हज़रात गिरामी कदर, हम मुल्क के आईन के पाबंद हैं, कानून के पाबंद हैं, लेकिन मुल्क के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईद के इज्तिमा को सबोताज करने के लिए सर्कस को उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मामला फिर भी हल हो चुका था, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से, ग्राउंड के अंदर पानी खड़े हो जाने की वजह से आज यहाँ पर पहली और आखिरी मर्तबा आपकी ईद हुई है। इंशाअल्लाह दोबारा यहाँ पर नहीं बल्कि वहीं पर होगी। और अगर किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो अल्लाह के फज़ल व करम से क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम हाक नशीनों की ठोकर में दमाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर के नारे को मीनारे पाकिस्तान के साए के नीचे लगाया जाएगा और ईदगाह को सबोताज करने वालों को यहाँ से बुलाया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, साथ ही साथ मैं ये बात भी कह देना चाहता हूँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी आज हमें इस बात का पैगाम देती है कि हमारे दिल में जहाँ रिज़ा इलाही का जज्बा पूरी कुव्वत और पूरे शद्द मस से होना चाहिए, वहां पर दुनिया भर के मजलूम भूखे मुसलमानों का दर्द भी हमारे दिल में मौजूद होना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, मुसलमान फलस्तीन का हो, मुसलमान कश्मीर का हो, मुसलमान बर्मा का हो, आज उन मुसलमानों के साथ जुल्म पर बरियत के उनके पर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। अल्लाह के फज़ल व करम से हम हुक्काम बाला के सामने इस बात को रखते रहेंगे, अपने भाइयों की हिमायत के लिए सिफारतकारी को करो,
अपने भाइयों की हिमायत के लिए अपने दुश्मनों के साथ सीना सबर होकर मैदान में उतरो, अपने भाइयों की हिमायत के लिए अपने भाइयों के साथ यकजहती के इजहार के लिए अपने वसाइल को सर्फ करो और उन जालिमों को पैगाम दो कि अभी मुसलमान जिंदा हैं। अखुवत इसको कहते हैं, चूहे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवाब बेताब हो जाए। हजरात गिरामी कदरा जालिम ये है, दुनिया भर के अंदर मुसलमान मजलूम मखरूर है और औरों की क्या बात करें। आज हमारी अपनी बेटी और बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पंजाब शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरात गिरामी कदर ईद के इज्तिमा के अंदर मैंने उनके लवाहिकीन से इस बात का वादा किया था कि अल्लाह के फजल करम से उनकी रिहाई के लिए भी आवाज को उठाया जाएगा और इस्लामाबाद के हुक्मरानों को ये बात बतलाई जाएगी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बारियाबी के लिए आवाज को उठाओ, उसके लिए सिफारतकारी को करो। अगर मुसलमान बहन बेटी कुफार की कैद में हो तो ये मुसलमानों के लिए डूब मरने का मुकाम है। हजरात गिरामी कहते मुझे ये बात बतलाइए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पंजाब शरीफ से आजाद करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? अल्लाह के फजल करम से उनको पंजाब शरीफ से आजाद करवाया जाएगा, अपने वतन में लाया जाएगा और उनके खानदान में आबाद किया जाएगा। और हजरात गिरामी कदर इसी हवाले से मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम पैगाम हक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम पैगाम सच है और सच्चाई की यहाँ कोई भी कीमत अदा करना पड़े हम उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। जहाँ पर शाइरिल्लाह की बात होगी, जहाँ पर दिफाए हक़ नबूवत की बात होगी, जहाँ पर फज़ाइल सहाबा की बात होगी, इंशाअल्लाह जो भी उनके लोग साजिशें करेगा, जो भी उनके लोग लबकुशाई करेगा, इंशाअल्लाह क्या आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। मलऊन मिर्जा चेलमी जो कि गुस्ताए साहबा है, लानिया तौर पर सैयद आयशा को बुरा भला कहता है, सैयद तलहा बिन उबैदुल्लाह को बुरा भला कहता है, सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम को बुरा भला कहता है, हजरत गिरामी का सैयदना अमीर मुआविया को गालियां देता है, हजरत गिरामी का उसको पसे दीवार जिंदा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसके हाथों में कड़ी को लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मिर्जा चेलमी के हाथ में कड़ी को डलवाया जाएगा, उसके पैरों में बेड़ियों को डलवाया जाएगा और मुल्क के अंदर अज़मत सहाबा का डंका बजाया जाएगा। हजरात गिरामी के अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज खाने का दिन भी है और खिलाने का दिन भी है। ये तो कोई बात ना हुई कि सारे खाने को खुद खराब कर लिया जाए और रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर लिया जाए। अल्लाह के हुक्म पे अमल होना चाहिए। फकुलू मिनहा वातिमुल बाइसल फकीर, खुद भी खाओ और बेबस फकीरों को भी खिलाओ। इंशाअल्लाह खुद भी खाएंगे और बेबस फकीरों को भी खिलाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की शुरूदी को हासिल करके और अल्लाह को राजी करके इंशाअल्लाह जन्नत के रास्तों को अपने लिए हमवार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में ईद कुर्बान को सही तरीके से मनाने की तौफीक दे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।